Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 11, and that is data handling. So, data is a collection of information gathered by observations and measurement. Data is organized in the form of charts, graphs and tables. इसका क्या मतलब है कि डेटा जो है वो कोई भी हमारे पास किसी भी बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नंबर्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, वो सब क्या है डेटा, और उन सब को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करने को, एक तरीके से उनको कलेक्ट करने को और फॉर्म करने को हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं. सो डेटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स. In the previous class, you have learned to organize the data using tallies. Tally का क्या मतलब होता है? जो marks हम लगाते हैं. Now we will revise it and learn more about pictographs. Tally के marks का एक बारी मैं आपको rule समझा देती हूँ. So 1, 2, 3, 4 and 5. So एक ये वाला जो sign है, this is a bunch of 5 tally marks. इसके बाद से 6, 7, 8, 9 and then again. तो एक एक ये वाला जो होता है, this is a bunch of 5. Otherwise ये इस तरीके से 1, 2, 3, 4 तक ये lose मार्क्स होते हैं. 5th के बाद ये बंच बन जाता है. सो मिस मार्था asked children to bring fruits for morning break. This graph shows the fruits the children had brought. Study the graph and then answer the questions. How many children brought apples? So apples are brought by 3 children. And which was the most popular fruit? Pear. Because 6 बच्चे लेकर आए हैं pear. And which fruit did only one child bring? Grapes. How many bananas were brought? 4. So bananas were brought by 4 children. How many children brought oranges? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 children brought oranges. So the tally chart shows how many of each kind of food item was sold during the weekend. Use the information from the tally chart to answer the questions. So burgers कितने sold out हुए हैं? मैंने बताया था ये जो bunch होता है ये 5 का होता है. So ये भी 5, ये भी 5 plus 1 loose. So it is 5 plus 5 plus 5 plus 1 is equals to 16 burgers. Pizza 5, 5, 5, 5 and 4. So it's 24. Fried chicken is 5, 5 and 2, that is 12. And hot dog is 5 plus 3 is equals to 8. ठीक है? तो how many burgers were sold? It was 16 in all. Which item was sold the most? Pizza. How many more fried chickens were sold than hot dogs? 12 minus 8 is equals to 4. Which item was sold the least? Hot dog. How many items were sold in all? So 16 plus 24 plus 12 plus 8 को हम सबको add कर देंगे, उतनी total items sell out हुई थी. Then you have to count how many tally marks are each of these. हम C part तक साथ में करेंगे, बाकी का आप अपने आप करेंगे. So this is 5, 5 and 3, 13. This is 5, 5, 5 and 1. This is 16. This is 5 and 2, 7. ठीक है? Rest you will count for yourself. Now let's revise tally marks. Tally marks are also called hash marks. And they are the form of numeral used for counting. The count of 1 is represented by the symbol of 1 tally mark, 2 is represented at 2. तो basically यहाँ पर यही बताया है कि 4 तक हम 4 मार्क्स लगाते हैं और जैसे ही 5 आता है हम इसमें एक diagonal tally mark लगा देते हैं. This is a bunch of 5 tally marks. ठीक है? And for 6th we continue writing one more. So these are 6, 7, 8, 9 and 10 tally marks. ठीक है? और ये 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए ये, 6 to 10 के लिए ये. Now you have to count the vegetables and draw the tally marks to show the count. So tomatoes कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So हम यहाँ पर मार्क करेंगे और फिर लिख सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many brinjals are there? There are 1, 2, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. Capsicums 1, 2 and 3. So 1, 2, 3. Alright.
नाउ व्हाट इज अ पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि एक पिक्चर बनाई जाती है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो अ पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ये वर्ड जो आया पिक, सो पिक्चर होता है जैसे, ऐसे ही पिक्टोग्राफ होता है. It uses the data using images, icons, symbols. A pictograph is also known as pictogram. Pictograph are one of the simplest way to represent a data, and it is a very fun way to read it also, because it is very much, you know, visually attractive. So in a school, the number of students class wise are given below. सो क्लास 1 में 70 स्टूडेंट्स हैं, 2 में भी 70, 3 में 60, 4 में 50 एंड क्लास 5 में 40 स्टूडेंट्स हैं. अब हमें क्या करना है कि हमें इसके लिए पिक्चर्स बनानी है. अब ऐसा तो नहीं है कि हम 70 पिक्चर्स ऑल टुगेदर बनाएंगे, तो हम मल्टीपल्स में बेसिकली इसको लेते हैं कि एक जो पिक्चर है, एक जो स्माइली है मेरा, तो सबसे पहले तो जो मेरा एक स्माइली है वो बच्चों के लिए डिनोट हो रहा है, ठीक है, और एक स्माइली का मतलब है 10 बच्चे. तो अगर 70 है तो मुझे 7 स्माइलीज बनाने पड़ेंगे. यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 6 स्माइलीज, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 स्माइलीज. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया है. अब यहाँ पर एक स्केल जरूर हम लिखेंगे, दैट 1 रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स. उसी तरीके से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक बुक सेलर सोल्ड 60 बुक्स ऑन मंडे, 50 ऑन ट्यूसडे, 80 ऑन वेंसडे एंड 40 ऑन थर्सडे, 40 ऑन फ्राइडे, 70 ऑन सैटरडे. सो बेसिकली मंडे टू सैटरडे की आपको बुक्स दिखाई गई है कि कितनी उसने सेल आउट करी. अब आप 10 बुक्स के लिए कोई भी एक पिक्चर को चूज कर सकते हैं. तो हमने एक पिक्चर ली है आगे बुक्स की, बट इफ यू फाइंड दिस पिक्चर डिफिकल्ट टू बी ड्रॉन, ठीक है, कि ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे अगर हम बुक बनाना आपको डिफिकल्ट लगे कि हम 10 बुक्स ऑल टुगेदर बना रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं. यू कैन सिंपली टेक 1 रेक्टेंगल, यू कैन टेक अ सर्कल, यू कैन टेक अ ट्राइंगल. सो बेसिकली बस आपको क्या करना है, स्केल लिख देना है नीचे कि ईच दिस सिंबल रिप्रेजेंट 10 कॉपीज या 10 books, and this is how you are going to represent. Similarly, in example 3, number of donuts sold on 5 days दिखाया गया है, जिसमें जो एक डोनट का वैल्यू है वो है 5 डोनट्स. ठीक है, तो जब मंडे को 5, 5 और 5 डोनट्स बिके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टोटल 15 डोनट्स हैं. और ये 5 times 4 मतलब 20 डोनट्स ऑन ट्यूसडे, 5 times 2 10 donuts on Wednesday, 5 times 5 25 donuts on Thursday, and 6 times 5 30 on Friday. ठीक है, now इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं कि how many donuts did she sell on Thursday? So it's 25. What day did she sell the least? सबसे कम यहाँ पर 10 donuts Wednesday को. Which day did she sell the most donuts? On Friday, 30. And which day did she sell 20 donuts? That's on Tuesday. So इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 83 है कि the table below shows the ages of 5 children and represent this information in a pictograph. और हमने कैंडल लेनी है एज अ पिक्चर, और एक कैंडल का मतलब 1 साल. तो यहाँ पर हम 5 कैंडल्स बनाएंगे, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 6 और यहाँ 7 कैंडल्स हम बनाएंगे. बनाना कैसे है इसको, हमने बच्चे का नाम लिखना है और उसका एज लिखना है, और ऐसे करके हमने एक टेबल बना देना है. सपोज हमने रिया का लिया और यहाँ पर 5 कैंडल्स बना दी. इसी तरीके से बाकी के बच्चों के लिए भी बनाना है, और फिर लास्ट में लिखना है स्केल कि 1 candle represents 1 year. So this is how pictograph has to be made. So the following table shows the number of trees of each fruit in a farm. Draw a pictograph based on this information and using the key. तो अब pictograph है, आप जो है कोई भी एक वो ले सकते हैं. हम ट्री का ही सिंबल ले लेते हैं. यहाँ पे दे रखा है वैसे कि एक ट्री का मतलब है 5, एक ट्री के सिंबल का मतलब है 5 ट्रीज. तो मतलब कि यहाँ पर हमको 4 ट्रीज बनाने हैं एप्पल के, है ना.
इसी तरीके से यहाँ पे 7 ट्रीज बनेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 8 ट्रीज बनेंगे, ठीक है। So on you are going to draw trees and then answer these questions. I'll do first two for you. How many trees are there in the farm? कितने trees हैं farm में, आप सबको add कर देंगे, 20 plus 35 plus 10 plus 25 plus 40. Which is the most popular tree? Orange banana tree is the most popular, जो कि सबसे ज़्यादा है 40. And which is the least popular? Mango tree, क्योंकि वो सिर्फ 10 है. Which two trees together mark 75? तो साथ में दोनों का जो है 75 होना चाहिए, वो है हमारा banana and orange. So 40 plus 35 is 75. Which three trees together make 80? तो 35 plus 25, 35 plus 25 is 60, 60 plus 20 is 80. तो together orange, cherry and apple trees make 80. Now this is a pictograph below, shows the data on the number of vehicles parked in a parking lot throughout the week, जिसमें एक कार का मतलब है 5 vehicles, और मंडे को इसी तरीके से 5 times 5 25 vehicles पार्क थे, ट्यूसडे को 5 times 4 20 vehicles पार्क थे, वेंसडे को भी 20 व्हीकल्स, थर्सडे को हमारे जो हैं वो 6 times 5 30 व्हीकल्स, फ्राइडे को हमारे 5 times 3 इज 15 व्हीकल्स, सैटरडे को 20 एंड संडे को हमारे 10 व्हीकल्स पार्क थे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं कि मैक्सिमम कब थे, मिनिमम कब थे। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। नंबर 4 में आपको क्या करना है कि फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द डेटा ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है, कि फुटबॉल कितनों को पसंद है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। एक स्माइली रिप्रेजेंट्स 3 स्टूडेंट्स, तो फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 6 times 3 18 बच्चों को, ठीक है। ये आप पहले ही लिख लेंगे, हमेशा हम पिक्टोग्राफ में ऐसे लिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमें फिर क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो 3 times 3 is equals to 9 and 3 times 2 is 6. एंड अब इससे पता चल जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल क्रिकेट को दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 33 आएगा। एंड सो ऑन, यू विल जस्ट रीड द क्वेश्चंस, see the pictograph and do and answer the questions. So this is your worksheet based on the chapter of data handling. You have to I'll just tell you थोड़ा सा कि कैसे कैसे करना है, करेंगे आप अपने आप ही। Count the number of fruits in each category and draw a tally mark for each one. Tick them off as you count them. तो ये बात मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे जैसे हम काउंट करते जाएंगे वैसे वैसे आप वहाँ पे उसको टिक मार्क या कट करते जाइए, ताकि आपको पता रहे कि आपने वो फ्रूट काउंट कर लिया है। ना तो वो डबल बारी काउंट होगा, ना तो वो छूटेगा। तो मैं आपके लिए एप्पल्स काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। तो टैली मार्क्स हम जो है 5 लगाएंगे और नंबर लिख देंगे 5, है ना। बनानाज हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे क्या होगा, मेरा एक भी बनाना अब छूटा नहीं है मार्क करने से, और ना ही मैं डबल काउंट करूंगी। सिमिलरली यू विल डू द पेयर ऑरेंज एंड दिस पर्पल फ्रूट। Now, the pictograph shows the number of trees planted in an orchard. So, एक ट्री का मतलब है 5 ट्रीज। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था। हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं टोटल वो लिखते जाएंगे, है ना। हम उसको लिखते जाएंगे कि हर ट्री जो है वो कितना कितना है। नंबर ऑफ ट्रीज को काउंट करेंगे, 5 से उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हम लिखते जाएंगे। नाउ अगेन देयर इज दिस क्वेश्चन कि आपको बताना है कि हर जो पेट है वो फेवरेट है किस हिसाब से, कौन सा पेट जो है वो कितना फेवरेट है। सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ? दिस इज फेवरेट पेट्स। हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? There are 6 dogs. Cats कितनी हैं? 3. And how many pets are there all together? सबको आप करेंगे add. 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. सब pets को add करके total all together का आंसर लिख देंगे। How many more dogs than cats are there? So 3 more हैं dogs cats से
And which animal was most favorite? Dog is the most favorite one here क्योंकि सबसे ज़्यादा है. The following tally chart shows the favorite superheroes of group of school students. Use the chart to answer the question. तो simple सबसे पहले हम जैसे पिक्टोग्राफ में करते हैं, इसमें भी आप टोटल नंबर लिखते जाएंगे कि सुपरमैन कितने बच्चों को पसंद है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. बंच ऑफ 5 है ना सारे. 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन. अब अकॉर्डिंग टू जो आपका नंबर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर देंगे. सिंपल. सो दिस इज ऑल इन द चैप्टर ऑफ डेटा हैंडलिंग. आई होप यू हैव लर्नड हाउ टू ड्रॉ and read the pictograph and the tally chart. So keep learning, keep shining. Bye bye.